Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Governmental Guru. Again, today I will discuss Unified Pension Scheme, UPS. So, according to the government gazette. So, my friends, please subscribe my channel and share my channel so that you can get notification for my upcoming videos. My channel is Asit Governmental Guru. Let's compete. Please, my friends, subscribe my channel so that you can get effective videos in subsequent time. Already I uploaded unified pension scheme, but today in this part, very briefly, I will clarify, and each and every point I will clarify so that if you listen the video up to the end, definitely 100% you can collect very nice information and complete information. Very briefly, actually, I have prepared, and also I will discuss different computations according to the different situations. So my friends, please see this video up to the end so that you can get complete information about unified pension scheme, and I prepared this video according to the government gazette. So you see, just you follow my Facebook page, Asit Governmental Guru. So in systematic manner, you can get all video links in my Facebook page. So please follow it and find the different links of different government rules. So again, my Facebook page is Asit Governmental Guru. Next one, my WhatsApp number, it is 8327782034. If you want to contact with me, and if any queries there, you can contact with me freely. My Telegram channel link is there, t.me/bapi2034. Also, you can join it so that you can get notification for my upcoming videos. So now I am going to start unified pension scheme very briefly. So I will discuss the brief features of UPS. First one, 24th January 2025, government already released the government gazette related to the unified pension scheme. So first one question is coming also. Ministry of Finance, Department of Economic Affairs released the gazette notification. You will see one question. It is very important one. Ministry of Finance is very common, but under Ministry of Finance, Department of Economic Affairs released the government notification, government gazette notification related to the unified pension scheme. Next option is actually those employees having NPS. You know that after 1st January 2004, all the government employees having NPS. So those government employees having NPS, so they can choose. They must have option. Either they choose NPS or UPS. So option is there. So, but here condition is those central government employees having NPS, फॉर देम ओनली ऑप्शन है यूपीएस को चूज करने के लिए. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस. ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर्स होना चाहिए. इफ यू वांट टू अवेल यूनिफाइड पेंशन स्कीम, बेनिफिट्स ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम, मिनिमम क्वालिफाइंग ईयर्स 10 ईयर्स होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट वन, फुल अस्योर्ड पे आउट. फुल अस्योर्ड पे आउट जो इसमें क्या बोला है कि बिफोर सुपर एनुएशन आपका जस्ट बिफोर प्रायर टू द सुपर एनुएशन जो 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे है, 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे, 12 जस्ट बिफोर सुपर एनुएशन 12 मंथ्स का बेसिक पे को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 12 करेंगे, एवरेज निकाल देंगे, उसका 50% पेंशन फिक्स होगा. ठीक है, और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिलेगा. वही दिया है, फुल अस्योर्ड पे आउट, क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 ईयर्स एंड मोर देन दैट. यदि आपका क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स कंप्लीट हो रहा है, तब आपको जो आपका पेंशन फिक्स होगा वो 50% ऑफ जस्ट बिफोर सुपर एनुएशन 12 मंथ्स एवरेज
12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे। सो इसमें कंडीशन है कि यदि आपका क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स एंड मोर देन दैट, ठीक है, क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्रायर टू द सुपरएनुएशन 12 मंथ्स का एवरेज बेसिक पे का 50% वो पेंशन फिक्स होगा, वो अस्योर्ड पे आउट फिक्स होगा, ठीक है, और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिलेगा। क्लियर? तो क्लियरली आप देख लीजिए, फुल अस्योर्ड पे आउट, क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 ईयर्स एंड मोर देन दैट। नेक्स्ट वन, फिक्सेशन ऑफ अस्योर्ड पे आउट বা पेंशन। इफ क्वालिफाइंग सर्विस इज 25 ईयर्स एंड मोर, यदि आपका क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स एंड मोर है, तो at the rate 50% ऑफ 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे इमीडिएटली प्रायर टू द सुपरएनुएशन प्लस उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिलेगा, ठीक है। यदि आपका क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर से कम है तो आपको प्रॉपर्शनेट अस्योर्ड पे आउट मिलेगा। मगर ये क्लियर है कि यदि आपका क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स एंड मोर देन दैट है, तो जस्ट प्रायर टू द सुपरएनुएशन 12 मंथ्स का एवरेज बेसिक पे निकालेंगे और उसका 50% आपका पेंशन फिक्स होगा, प्लस उसके ऊपर आपको डियरनेस रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी दे दिया, इफ द क्वालिफाइंग सर्विस इज लेस देन 25 ईयर्स, तो आपको प्रॉपर्शनेट अस्योर्ड पे आउट मिलेगा, ठीक है। प्रॉपर्शनेट मीन्स जैसे 25 आपका क्वालिफाइंग सर्विस जब 25 ईयर से, तो आपको 50% मिल रहा है। सपोज आपका क्वालिफाइंग सर्विस 22 ईयर से, तो आपको 44% मिलेगा। 44% ऑफ 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे बिफोर प्रायर टू द सुपरएनुएशन, ठीक है। तो 44% मिलेगा, क्योंकि 25 ईयर्स एंड मोर तो मैक्सिमम तो 50% है। तो ऐसे 25 ईयर्स एंड मोर, हम जैसे 50% है, हम 25 ईयर्स के हिसाब से देखेंगे, पर ईयर 2% है, तो आप जितना क्वालिफाइंग सर्विस होगा उसमें इंटू 2 कर दीजिए। तो यहां पर आपको 22 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस है और अदर कंडीशंस को आप फुलफिल कर रहे हो, तो 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे का 44% आपको आपका पेंशन फिक्स होगा, अस्योर्ड पे आउट फिक्स होगा, और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिलेगा। तो उसमें क्लियर है, यदि आपका क्वालिफाइंग सर्विस लेस देन 25 ईयर से, तो आपको प्रॉपर्शनेट अस्योर्ड पे आउट मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, यहां पर थोड़ा क्लैरिफाई में कर दिया, जो क्लैरिफिकेशन ऑफ 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे इमीडिएटली प्रायर टू द सुपरएनुएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? जैसे सुपरएनुएशन डेट है 30 जून 2030, ये आपका सुपरएनुएशन डेट है, रिटायरमेंट डेट है। तो प्रायर टू द सुपरएनुएशन हम 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे इसे लेंगे, बेसिक पे ऑफ जुलाई 29, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 2029, प्लस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्योंकि जून 30 में रिटायरमेंट होता है। हो गया 12 मंथ्स, ओके। 12 मंथ्स क्लियर है कि नहीं? 12 मंथ्स आप बेसिक पे देख लीजिए, तो एवरेज निकाल दीजिए डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो ऐसे हम 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे इमीडिएटली प्रायर टू द सुपरएनुएशन हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल में दे दिया, यहां पर देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अस्योर्ड पे आउट, ठीक है। तो यहां पर दे दिया, देखिए कि एग्जांपल अस्योर्ड पे आउट के लिए 12 मंथ्स, जैसे एक एग्जांपल दे दिया, 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे बिफोर सुपरएनुएशन ₹1 लाख, ये एवरेज जस्ट प्रायर टू द सुपरएनुएशन हम 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे निकाल दिया, ये ₹1 लाख है। आपका क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स एंड मोर है, तो 25 ईयर्स मोर मीन्स 50%, तो अस्योर्ड पे आउट यहां पर 50% ऑफ 1 लाख, 50% ऑफ 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे, ठीक है, और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिलेगा। तो 50% ऑफ, तो हमारा 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे 1 लाख है, तो उसका 50% ₹50,000 और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो ये अस्योर्ड पे आउट इसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और ये जो एग्जांपल में मैं दे दिया, ये फुल अस्योर्ड पे आउट है, ठीक है, क्योंकि क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स एंड मोर मींस आपको फुल अस्योर्ड पे आउट मिलेगा, फुल अस्योर्ड पेंशन मिलेगा। नेक्स्ट वन,
मिनिमम गारंटेड पे आउट, जो मिनिमम पेंशन होगा वो ₹10,000 प्लस डियरनेस रिलीफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कम नहीं होगा। तो मिनिमम गारंटेड पे आउट ₹10,000 और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, गवर्नमेंट रिटायरिंग एन एम्प्लॉय अंडर द प्रोविजंस ऑफ FR 56J विच इज नॉट ए पेनल्टी अंडर CCA रूल्स 1965। आप देखिए, जो फंडामेंटल रूल 56J में, ठीक है, गवर्नमेंट एक कंसर्न एम्प्लॉय को रिटायर दे सकता है, क्योंकि आप फंडामेंटल रूल 56J, ये भी मेरा वीडियो पड़ा है। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट सपोज आपको रिटायरमेंट दे देता है। ठीक है, तो इस केस में फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको अस्योर्ड पे आउट मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अस्योर्ड पे आउट फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ओके, डेट ऑफ रिटायरमेंट से आपको अस्योर्ड पे आउट मिल जाएगा। और इसमें वही है, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस आपका 10 ईयर्स होना चाहिए। तो अभी जो गवर्नमेंट जो फंडामेंटल रूल 56J को इंसर्ट किया, it is clearly mentioned that the government can retire the employees, okay, after quarterly analyze actually their annual performance appraisal report, their performance, है कि नहीं। तो ये फंडामेंटल रूल 56J को आप थोड़ा देख लीजिए, आप मेरा वीडियो पढ़ा है उसके ऊपर। ठीक है, फंडामेंटल रूल्स में, तो उसमें यदि आपको रिटायरमेंट गवर्नमेंट कर देता है, ये भी एक टाइप ऑफ जो रिटायरमेंट है, गवर्नमेंट फोर्सफुली आपको रिटायर कर देता है 3 मंथ्स नोटिस देके। तो जिस डेट से आपका रिटायरमेंट होगा उसी डेट से आपको, यदि आप ऑप्शन चूज किया है, यूपीएस ऑप्शन चूज किया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, पहले आपका एनपीएस था, आप यूपीएस चूज किया है, तो आपको फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको अस्योर्ड पे आउट मिल जाएगा। ठीक है, और एक वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट है, वो तो गवर्नमेंट आपको रिटायर कर दिया। ठीक है, अभी आया है फंडामेंटल रूल 56J, क्वार्टरली आपका सर्विस को रिव्यू किया जाएगा, और जो बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वो उनका 35 ईयर्स के पहले ज्वाइन किए हैं, उनका रिव्यू स्टार्ट हो जाएगा 50 ईयर्स में। ठीक है, तो 50 ईयर्स के बाद जब उनका एज 50 ईयर्स हो जाएगा, तो उसके बाद उनका गवर्नमेंट कभी भी रिटायर कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। और जो गवर्नमेंट जॉब में उनका एज बियॉन्ड 35 ईयर्स है, और उनका जो रिव्यू स्टार्ट हो जाएगा जब उनका एज 55 ईयर्स हो जाएगा है। ठीक है, चलो, ये वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट है। बिफोर सुपरएनुएशन सपोज आप वॉल्यूंटरीली रिटायरमेंट लेना चाहते हो, तो इसमें इस केस में यदि आप यूपीएस ऑप्शन चूज किया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, पहले एनपीएस था, तो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट लेते हो और आपका मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर से कम है, ठीक है, आप यूपीएस चूज किया है मगर फिर भी आपको यूपीएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप एलिजिबल नहीं हो, तो आप वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट खुद रिटायरमेंट ले रहे हो बिफोर सुपरएनुएशन, तो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर आपको जो अस्योर्ड पे आउट मिलेगा, जो यूपीएस का बेनिफिट मिलेगा, वो जिस डेट में आप वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले रहे हो उसी डेट से नहीं मिलेगा। जिस डेट में आपका एक्चुअली सुपरएनुएशन डेट है, उसी डेट से आपको बेसिकली यूपीएस का बेनिफिट मिलेगा, अस्योर्ड पेंशन आपको मिलेगा। ठीक है, बट इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ सुपरएनुएशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, आपका सुपरएनुएशन डेट 30 जून 2030 है, तो वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट इसके पहले आप ले लिया, आफ्टर क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 ईयर्स, आप ऑलरेडी मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट कर चुके हो, तो आप वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले लिया 30 जून 2028। इट मीन्स आपका जो सुपरएनुएशन डेट था उसके पहले आप रिटायरमेंट ले लिया, मगर आपको जो अस्योर्ड पे आउट मिलेगा वो कब से मिलेगा भाई? 30 जून 2030 से मिलेगा बेसिकली, बट ही गेट अस्योर्ड पे आउट फ्रॉम 1/7/2030, क्योंकि आपका सुपरएनुएशन डेट का रिटायरमेंट 36/2030 है, तो आपको जो अस्योर्ड पे आउट मिलेगा कौन सा डेट से? 1 जुलाई 2030। तो इट मीन्स इसमें यदि क्वेश्चन आता है बेसिकली वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट केस में, बिफोर सुपरएनुएशन आप वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले रहे हो, आप खुद रिटायरमेंट ले रहे हो, तो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स होना चाहिए।
ठीक है, मगर आपको जो अस्योर्ड पे आउट मिलेगा, जो यूपीएस के अंदर जो इट मीन्स थ्रू यूपीएस आपको जो अस्योर्ड पेंशन मिलेगा वो एक्चुअली आपको सुपर अन्वेषण डेट से मिलेगा। ठीक है, मगर आपको यदि गवर्नमेंट रिटायर्ड कर देती है अंडर फंडामेंटल रूल 56J, ओके, इफ you would be retired by the government under fundamental rule 56J, so from which date actually you retired, then from that date actually you get assured payout। मगर ये वॉलंटरी रिटायरमेंट केस में थोड़ा अलग है। ठीक है, क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। यदि आपको रिमूवल डिसमिसल कर दिया जाता है फ्रॉम सर्विस और आप रेजिग्नेशन दे देते हो, तो आप यूपीएस चूज किया था मगर आप यूपीएस के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, यूपीएस का कोई बेनिफिट यहां पर नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि आपको सपोज मेजर पेनल्टी लगता है सीसीए रूल्स में, सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965 में आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग चल रहा था और मेजर पेनल्टी लगा जिसमें आपको रिमूव कर दिया गया कि डिसमिस कर दिया गया कि आप खुद रेजिग्नेशन दे दिए, तो इस केस में आपको यूपीएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप यूपीएस के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, अभी क्लियर ऑन स्टूडेंट, आप एनपीएस आपका था, आप यूपीएस चूज किए थे मगर आपको सर्विस से रिमूव कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया कि आप जॉब से रेजिग्नेशन दे दिए, तो इसमें ओनली वही एनपीएस का बेनिफिट मिलेगा, यूपीएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इंपोर्टेंट वन, डेथ ऑफ द पे आउट होल्डर आफ्टर सुपरएनुएशन। तो सुपरएनुएशन के बाद ओके जो पेंशन होल्डर है उसका डेथ हो जाता है आफ्टर सुपरएनुएशन। ठीक है, यदि डेथ हो जाता है तो उसका जो वाइफ है, ठीक है, लीगल वाइफ है, उसको अस्योर्ड पे आउट पेंशन मिलेगा मगर वो 60% के हिसाब से मिलेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे आपका जो पेंशन था 80,000, उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ था, तो आपका जो पेंशन फिक्स हुआ था ₹80,000 था। ठीक है, प्लस डियरनेस रिलीफ था, तो इस केस में यदि आफ्टर सुपरएनुएशन आपका डेथ हो गया तो आपको तो ही मिल रहा था पेंशन 80,000, उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ। अभी यदि आपको डेथ हो जाता है तो फैमिली पे आउट मिलेगा, आपका जो वाइफ है उसको कितना फैमिली पेंशन मिलेगा ना, 60% ऑफ ₹80,000, राइट। पहले जो आपको जो पेंशन मिल रहा था 80,000 प्लस डियरनेस रिलीफ, अभी फैमिली पेंशन कितना मिलेगा ना, 60% ऑफ ₹80,000 प्लस डियरनेस रिलीफ। इट मीन्स जो फैमिली पेंशन हो जाएगा वो 48,000 हो जाएगा, 48,000 प्लस डियरनेस रिलीफ। क्लियर, तो इट मीन्स यदि आफ्टर सुपरएनुएशन बेसिकली द पेंशन होल्डर एक्चुअली डाइड, देन इन दैट केस जो फैमिली पे आउट है, जो फैमिली पेंशन है वो 60% होगा, और एग्जाम्पल भी दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, जो डियरनेस रिलीफ, आपको डियरनेस रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो डियरनेस रिलीफ बेसिकली जो डियरनेस अलोवेंस होता है वो उसके साथ बराबर होगा। हमारा डियरनेस अलोवेंस एक्चुअली एवरी 6 मंथ में मिलता है, जिसको हम डीए बोलते हैं। तो क्लियर, तो वही जो डियरनेस रिलीफ एंड डीए ये दोनों समान रहेगा। अभी गवर्नमेंट का गेजेट में डिक्लेयर किया है डियरनेस रिलीफ एंड डीए बोथ सेम रहेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा है, आपका जो पेंशन फिक्स होगा उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिलेगा और डियरनेस रिलीफ वही रहेगा जो डियरनेस अलोवेंस के साथ समान रहेगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और एक मजा बात है कि एक लॉमसम पे आउट आपको मिलेगा, आपको तो अस्योर्ड पे आउट मिलेगा प्लस लॉमसम पेमेंट भी मिलेगा। आफ्टर सुपरएनुएशन आपको एक लॉमसम अमाउंट मिलेगा, और ये जो लॉमसम अमाउंट मिलेगा वो आपका अस्योर्ड पे आउट को अफेक्ट नहीं करेगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि हम लॉमसम अमाउंट लेंगे तो हमको अस्योर्ड पेंशन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं, दोनों मिलेगा, लॉमसम पेमेंट मिलेगा और एज यूजुअल अस्योर्ड पेंशन आपको मिलता रहेगा। तो ये लॉमसम पेमेंट कैसे मिलेगा, उसका कैलकुलेशन क्या है? वही लॉमसम पेमेंट के लिए आपका मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर्स है, क्योंकि आप जानते हो जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का बेनिफिट किसको मिलेगा, जब आपका क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर्स एंड मोर है, क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर्स एंड मोर, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का एक पार्ट है लॉमसम पेमेंट। जस्ट आफ्टर सुपरएनुएशन आपको एक लॉमसम पेमेंट मिल जाएगा।
बाकी आपको अश्योर्ड पेंशन मिलता रहेगा मंथली। तो ये इसका फॉर्मूला क्या है ना, 10% ऑफ बेसिक पे एट द टाइम ऑफ सुपरएनुएशन प्लस डियरनेस अलाउंस। जो सुपरएनुएशन टाइम में आपका जो बेसिक पे है और उसके ऊपर डियरनेस अलाउंस, जो एमोलुमेंट्स बोलते हैं, यहां पर जो एमोलुमेंट्स है वो बेसिकली बेसिक पे प्लस डीए, याद रखना है। यहां पर जो लॉमसम पेमेंट को, जो लॉमसम अमाउंट आपको मिलेगा, जो एमोलुमेंट्स रहेगा वो रिटायरमेंट के टाइम में जो बेसिक पे है और उसके ऊपर और उस समय जो डीए है, कॉरेस्पॉन्डिंग डीए है। ठीक है, क्लियर? ये बेसिक पे प्लस डीए, क्लियर? ये एमोलुमेंट्स है, उसका 10% आप कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, और बाकी आपका जो नंबर ऑफ 6 मंथली क्वालिफाइंग सर्विस, 6 मंथली क्या है, सपोज आप 27 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस है, ये आपका क्वालिफाइंग सर्विस है 27 ईयर्स, इसको हाफ ईयर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, 54 हाफ ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस, तो वही एल है। ठीक है, तो जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसको हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर दीजिए, उसको हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला है। तो बेसिकली रिटायरमेंट टाइम में एट द टाइम ऑफ सुपरएनुएशन आपका एमोलुमेंट्स, ओके, बेसिक पे प्लस डीए, उसका 10% हम लेंगे। ठीक है, इनटू जितना क्वालिफाइंग सर्विस है उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए हाफ ईयर में, उसको कन्वर्ट कर दीजिए हाफ ईयर में, उसका सिंबल वही एल है। ठीक है, क्लियर? तो उसमें एक एग्जांपल देख लीजिए। देखिए, बेसिक पे एट द टाइम ऑफ सुपरएनुएशन 50,000 है, जब आपका सुपरएनुएशन हो रहा है तब उस टाइम आपका बेसिक पे 50,000 है और डियरनेस अलाउंस सपोज उस टाइम में 50% है। एक इमेजिनरी एग्जांपल ले लिया। आपका क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स है, तो मैं बार बार बताया कि क्वालिफाइंग सर्विस को आप हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 28 ईयर्स, हाउ मेनी हाफ ईयर्स, 56, तो 56 हाफ ईयरली क्वालिफाइंग सर्विस, वही एल है। अभी कैलकुलेट करेंगे लॉमसम पेमेंट कितना है ना, बेसिक पे प्लस डीए, ये आ गया आपका बेसिक पे एट द टाइम ऑफ सुपरएनुएशन 50,000 है और डीए 50% है, आप कैलकुलेट कर दीजिए, उसका 10% ले जाइए। ठीक है, और यहां पर जो बेसिक पे प्लस डीए है वो 75,000 है, उसका 10% इंटू 56। 56 कहां से आया, क्योंकि क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स है, तो उसको हाफ ईयर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, वही है एल। ठीक है, और 10% ऑफ एमोलुमेंट्स 7,500 इंटू 56, ठीक है, वो 4,20,000 आपको एक लॉम सम अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन आप दे रहे हो ना, तो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, आगे मैं बताऊंगा, जो 2 टाइप ऑफ फंड्स है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% है, जो जीपीएफ था, ओल्ड पेंशन था, उसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन था विथ इंटरेस्ट हमको गवर्नमेंट पूरा रिटर्न करता था, मगर यहां पे एक लॉन्ग सम अमाउंट आपको देगा। पूरा आपका जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसको पूरा तो रिटर्न नहीं करेगा, मगर एक लॉन्ग सम अमाउंट आपको देगा, और वो लॉन्ग सम अमाउंट एक्चुअली अश्योर्ड पे आउट को अफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर? बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक दे दिया, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2 फंड्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको समझिए। कॉर्पस अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम, 2 टाइप ऑफ फंड्स, वन इज द इंडिविजुअल कॉर्पस, आईसी इसका सिंबल है, और एक है पूल कॉर्पस। ठीक है, जो इंडिविजुअल कॉर्पस है उसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 10%, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 10%। देखिए यहाँ पर, तो हम जानते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन है वो बेसिक पे प्लस डीए के ऊपर मिलता है। आप जानते हो हमारा जो बेसिक पे प्लस डीए अभी एनपीएस में वही मिलता है, जो अभी हमारा कंट्रीब्यूशन 10% एनपीएस में है, बेसिक पे प्लस डीए, और गवर्नमेंट 14% दे रहा है, गवर्नमेंट से। ठीक है, मगर इंडिविजुअल कॉर्पस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन 10% रहेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 10% रहेगा। दोनों क्रेडिट होगा इंडिविजुअल कॉर्पस में, दोनों क्रेडिट होगा इंडिविजुअल कॉर्पस में। क्लियर? क्लियर हो गया। और एक सेकेंड टाइप ऑफ फंड है जिसको बोलते हैं पूल कॉर्पस। पूल कॉर्पस में ओनली गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहेगा, एक एडिशनल कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का रहेगा। देखिए, गवर्नमेंट का एक एडिशनल कंट्रीब्यूशन रहेगा, कितना, 8.5% रहेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक एडिशनल कंट्रीब्यूशन देगा 8.5%, जो आपको अश्योर्ड पे आउट्स को वो सपोर्ट करेगा, अश्योर्ड पे आउट को, अश्योर्ड पेंशन को वो सपोर्ट करेगा। तो इट मींस यदि हम दोनों फंड्स को देखेंगे, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 18.5% है। ठीक है, यहां पर गवर्नमेंट का
यहां पर 10%, 10%, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10%, गवर्नमेंट का 10%, मगर यहां पर ओनली गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, एडिशनल कंट्रीब्यूशन 8.5%। यदि क्वेश्चन आता है कि टोटल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन दोनों फंड्स में कितना है, 18.5%। और एक क्वेश्चन आ सकता है जो पूल कॉर्पस है, तो गवर्नमेंट पूल कॉर्पस फॉर व्हाट रीजन एक्चुअली द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस पूल कॉर्पस, क्योंकि ये जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का है 8.5%, ये बेसिकली सपोर्ट करेगा अस्योर्ड पे आउट को। तो ये दो प्रकार का फंड है। तो रिटायरमेंट टाइम में जो इंडिविजुअल कॉर्पस में जो भी वैल्यू है कि यूनिट से, वो ट्रांसफर हो जाएगा पूल कॉर्पस को, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ सुपरएनुएशन, द यूनिट्स एंड वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस ट्रांसफर टू पूल कॉर्पस, ठीक है, क्लियर। तो टू टाइप ऑफ फंड्स। नेक्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट चॉइस आपको मिलेगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट चॉइस जो मिलेगा इंडिविजुअल कॉर्पस में, इंडिविजुअल कॉर्पस में आपको इन्वेस्टमेंट चॉइस मिलेगा। पूल कॉर्पस जो है, पूल कॉर्पस में जो गवर्नमेंट का एडिशनल कंट्रीब्यूशन 8.5% है, वहां पर ओनली गवर्नमेंट वो डिसाइड करेगा उसका इन्वेस्टमेंट। मगर इंडिविजुअल कॉर्पस में जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो चॉइस आपको दिया जाएगा। एम्प्लॉय खुद चॉइस कर सकता है कि कहां पर वो जो एम्प्लॉय का 10% है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का 10% है, कहां पर इन्वेस्टमेंट होगा, वो उसके पास चॉइस रहेगा, ठीक है। और द इन्वेस्टमेंट रेगुलेटेड बाय पीएफआरडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। और एक डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा यदि आप कुछ चूज नहीं करते हो। जैसे इंडिविजुअल कॉर्पस में जो आपका कंट्रीब्यूशन 10% है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 10% है, यदि आप चूज नहीं करते हो कि कहां पर ये इसको इन्वेस्ट किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो डिफॉल्ट पैटर्न इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है, वो डिफॉल्ट पैटर्न में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और जो डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इज डिटरमाइंड बाय द टाइम टू टाइम, इट इज डिटरमाइंड बाय द पीएफआरडी, ठीक है। यहां पर दे दिया नो इन्वेस्टमेंट चॉइस, आप कुछ चॉइस नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली वो डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। और डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्चुअली टाइम टू टाइम डिटरमाइंड बाय द पीएफआरडी, ठीक है। तो आपके पास चॉइस रहेगा यदि आप चॉइस नहीं दे रहे हो इंडिविजुअल कॉर्पस में ओनली, इंडिविजुअल कॉर्पस में ओनली, ठीक है। यदि आप चॉइस नहीं दे रहे हो तो वो डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, ठीक है। और यहां पर और एक मजा पॉइंट है, देखिए पूल कॉर्पस, पूल कॉर्पस में क्या है, जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का है, ये जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का है पूल कॉर्पस में, इसमें ओनली गवर्नमेंट के पास सोल पावर रहेगा कि उसको कहां पर इन्वेस्ट किया जाएगा, ओके। गवर्नमेंट हैज ओनली सोल पावर टू चूज द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन केस ऑफ पूल कॉर्पस, राइट। अच्छा, और एक मजा बात है कि सपोज जिनका एनपीएस था और अभी वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, अभी तो 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस ऑपरेट होगा, मगर उसके पहले यदि एम्प्लॉइज जिनका एनपीएस था वो रिटायर कर चुके हैं और वो यूपीएस को चूज किया है, तभी भी उनको यूपीएस का बेनिफिट मिलेगा। तो उसमें वो पीएफआरडीए, ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या करेगा ना, वो जो विथड्रॉल किया है एनपीएस में, आप जानते हो रिटायरमेंट टाइम में मैक्सिमम 60% यू कैन विथड्रॉ, और बाकी जो बैलेंस 40% रहेगा वो एन्युटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट होगा, तो उसको पीएफआरडीए एडजस्ट करेगा और बाकी जो बचेगा टॉप अप अमाउंट में उनको पेंशन देगा। तो ये बहुत बढ़िया है। दोज एनपीएस एम्प्लॉइज ऑलरेडी रिटायर्ड, okay, before it means operational of the UPS, also they can get benefit if they choose UPS option, then also they can get benefit under UPS। जो भी वो विथड्रॉल किया है उसको पीएफआरडी एडजस्ट करेगा, ठीक है, और एडजस्ट करने के बाद एक टॉप अप अमाउंट उनको पेंशन के आकार में देगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट वन, एक बेंचमार्क कॉर्पस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंचमार्क कॉर्पस, ये थर्ड टाइप ऑफ कॉर्पस है। पहले हम 2 टाइप ऑफ कॉर्पस जान चुके हैं, इंडिविजुअल कॉर्पस और एक था पूल कॉर्पस ना, ये बेंचमार्क कॉर्पस है। तो बेंचमार्क कॉर्पस जो है वो 3 अज्यूम किया गया है, जो पीएफआरडीए ने अज्यूम किया है कि 3 टर्म्स है।
एक क्या है, आपका कंट्रीब्यूशन रेगुलर होना चाहिए, जो ऑटोमेटिकली यदि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रेगुलर होगा तो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी होगा, ये रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, एवरी मंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस आपका कंट्रीब्यूशन ओके रेगुलरली क्रेडिट होना चाहिए एम्प्लॉय का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, यदि कुछ कंट्रीब्यूशन, सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या है, यदि कुछ कंट्रीब्यूशन मिसिंग हो जाता है, यदि कुछ कंट्रीब्यूशन मिसिंग हो जाता है तो ये बेंचमार्क कॉर्पस एक्चुअली पीएफआरडीए वो एक एवरेज बेसिस में ये बेंचमार्क कॉर्पस को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, यदि आपका कुछ कंट्रीब्यूशंस मिस आउट हो जाता है, आगे में हम कुछ कंप्यूटेशंस को देखेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो डिफॉल्ट ऑप्शन में रहेगा। डिफॉल्ट पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्वेस्टमेंट चॉइस करोगे तो वहां पर क्या होगा, वो बेंचमार्क कॉर्पस से थोड़ा डिफरेंट होगा। ये जो थर्ड केस में यदि आप इन्वेस्टमेंट चॉइस करते हो, कभी कभी आपका इंडिविजुअल कॉर्पस ग्रेटर देन बेंचमार्क कॉर्पस कि इंडिविजुअल कॉर्पस में बी लेस देन बेंचमार्क कॉर्पस, ये हो सकता है। ठीक है कि नहीं, मगर आप डिफॉल्ट पैटर्न में इन्वेस्ट करोगे, यदि आप ये जो बेंचमार्क कॉर्पस है वो डिफॉल्ट पैटर्न में इन्वेस्टमेंट होगा, और डिफॉल्ट पैटर्न में ऑलवेज जो इंडिविजुअल कॉर्पस का जो वैल्यू है कि यूनिट से, वो बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू और यूनिट्स के साथ समान होगा। जो इंडिविजुअल कॉर्पस में क्या है, एम्प्लॉय का 10% और गवर्नमेंट का 10% है कि नहीं, तो है कि नहीं, तो यदि वो डिफॉल्ट पैटर्न में इन्वेस्टमेंट होता है तो इंडिविजुअल कॉर्पस का जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और उसका जो यूनिट्स है, जो शेयर यूनिट्स है, वो बेंचमार्क के साथ समान होगा, याद रखिए। तो बेंचमार्क कॉर्पस ऑलवेज डिफॉल्ट पैटर्न में इन्वेस्टमेंट होता है, होगा डिफॉल्ट पैटर्न में इन्वेस्टमेंट होगा, ये याद रखिए। यदि आप जो इंडिविजुअल कॉर्पस में जो एम्प्लॉय शेयर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के शेयर है, दोनों शेयर है, इसको आप चॉइस नहीं करो, इन्वेस्टमेंट चॉइस नहीं देते हो, तो ऑटोमेटिकली वो डिफॉल्ट पैटर्न में इन्वेस्टमेंट होता है। तो बेंचमार्क कॉर्पस सभी समय हम जो कैलकुलेट करेंगे वो डिफॉल्ट पैटर्न में हम करेंगे। तो ये तीन टर्म्स को याद रखिए। एक है आपका जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय और सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन वो रेगुलरली क्रेडिट होना चाहिए, एवरी क्वालिफाइंग मंथ ऑफ सर्विस वो रेगुलरली क्रेडिट होना चाहिए। और सेकेंड पॉइंट, यदि कुछ मिसिंग कंट्रीब्यूशन है तो एवरेज बेसिस में पीएफआरडीए डिटरमाइन करेगा बेंचमार्क कॉर्पस को, और ये जो बेंचमार्क कॉर्पस है वो एक्चुअली डिफॉल्ट पैटर्न में ही इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, डिफॉल्ट पैटर्न में इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो चलो यहां पर दे दिया कि इन्वेस्टमेंट चॉइसेस इन केस ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस। तो इंडिविजुअल कॉर्पस में जो इसमें मैं लिख देता हूं, जो एम्प्लॉय का शेयर है 10% और जो गवर्नमेंट का शेयर है 10% होता है, ये दोनों क्रेडिट होता है इंडिविजुअल कॉर्पस में। तो यदि आप इन्वेस्टमेंट चॉइस करते हो, आप खुद इन्वेस्टमेंट चॉइस करते हो, इंडिविजुअल कॉर्पस में ओनली ऑप्शन है, इंडिविजुअल कॉर्पस में जो एम्प्लॉय का शेयर है, गवर्नमेंट का शेयर है, इसमें ओनली किसका पावर होता है, ओनली एम्प्लॉय का पावर है, वो इन्वेस्टमेंट चॉइस करेगा। यदि इन्वेस्टमेंट चॉइस नहीं करेगा वो तो डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। यदि आप इन्वेस्टमेंट चॉइस किया है तो आपको पीरियोडिकली, ठीक है, तो आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस में कितना वैल्यू यूनिट्स है और आपका बेंचमार्क कॉर्पस में कितना वैल्यू और यूनिट्स है वो आपको गवर्नमेंट इन्फॉर्म करेगा। अभी भी हमें इंफॉर्मेशन पीरियोडिकली हमको मिलता है कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है और हमारा कितना शेयर्स है कि नहीं। तो वैसा ही यदि आप इन्वेस्टमेंट चॉइस करते हो तो दोनों अलग आएगा, क्योंकि वंस इन्वेस्टमेंट चॉइस करोगे मीन्स इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस में थोड़ा डिफरेंस आएगा। मगर यदि डिफॉल्ट पैटर्न में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, डिफॉल्ट पैटर्न में, तब जो इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस समान होगा, इसमें कोई अलग नहीं होगा यदि डिफॉल्ट पैटर्न में। मगर आप इन्वेस्टमेंट चॉइस करते हो, तब ये दोनों डिफरेंट, जो इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस है, ये दोनों में डिफरेंस आएगा। तो ठीक है कि नहीं। तो आपको पीरियोडिकली बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, पीएफआरडी आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपका इंडिविजुअल कॉर्पस में कितना वैल्यू है यूनिट से और आपका बेंचमार्क कॉर्पस में कितना वैल्यू और यूनिट से। ठीक है, और यहां पर देखिए
जो डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ऑलवेज यू रिमेंबर, डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में आपका इंडिविजुअल कॉर्पस, ठीक है, जो इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू और यूनिट्स है वो बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू और यूनिट्स के साथ समान होगा। तो डिफॉल्ट पैटर्न में इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस का जो वैल्यू और यूनिट्स है वो समान रहेगा, मगर आप इन्वेस्टमेंट चॉइस कर दिया तो वहां पर डिफरेंट होगा। इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू और यूनिट्स, बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू और यूनिट्स, उसमें डिफरेंस आएगा। ठीक है, आगे मैं कुछ एग्जांपल से मैं बताऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट वन जो आपका क्वालिफाइंग सर्विस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हो, हेड ऑफ द ऑफिस वही एक्चुअली डिसाइड करेगा आपका कितना क्वालिफाइंग सर्विस है। हेड ऑफ द ऑफिस वेयर ही इज एम्प्लॉयड, ठीक है, वेयर एक्चुअली यू आर वर्किंग ना, ओके, आपका जो स्टेशन है वही हेड ऑफ द ऑफिस वो डिटरमाइन करेगा आपका क्वालिफाइंग सर्विस कितना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट दे दिया कि सुपरएनुएशन और रिटायरमेंट टाइम में आपका दो कॉर्पस है, एक है इंडिविजुअल कॉर्पस है और एक पूल कॉर्पस है। इंडिविजुअल कॉर्पस में दोनों शेयर है, एम्प्लॉय का और गवर्नमेंट का, और जो पीसी है पूल कॉर्पस है ओनली गवर्नमेंट का एडिशनल कंट्रीब्यूशन है, यहां पर ओनली 8.5% है। वो ये बता रहा है कि सुपरएनुएशन रिटायरमेंट टाइम में तो ये ट्रांसफर हो जाएगा, जो इंडिविजुअल कॉर्पस का जो वैल्यू है वो ट्रांसफर हो जाएगा कहां पर, पूल कॉर्पस में, और तब आपको अश्योर्ड पे आउट मिलेगा। तो जो एम्प्लॉय के पास ऑथराइजेशन पावर है वो इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू को ट्रांसफर कर देगा पूल कॉर्पस में, कब ना, एट द टाइम ऑफ सुपरएनुएशन और रिटायरमेंट। ठीक है, द एम्प्लॉय अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम शाल ऑथराइज ट्रांसफर ऑफ द वैल्यू और यूनिट्स इन द इंडिविजुअल कॉर्पस टू द पूल कॉर्पस। और मजा बात है कि यहां पर देखना है कि जो सुपरएनुएशन और रिटायरमेंट में आपका इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू, ठीक है, इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू और यूनिट ये कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा ना, पूल कॉर्पस में। मगर इसमें मजा बात है, ये जो सभी समय क्या होगा ना, इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से समान होना चाहिए, तब समान होगा तो आपको बेसिकली अश्योर्ड, इट मींस फुल अश्योर्ड पेंशन मिल सकता है। फुल अश्योर्ड पेंशन मिलेगा यदि 25 ईयर्स आप क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट करते हो। ठीक है, यदि ये दोनों समान नहीं होगा, ठीक है, तो समान नहीं होगा तो आगे में हम डिस्कस करेंगे, मगर ये कंफर्म है कि आपका जो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा और क्लैरिफाई कर देता हूं। एट द टाइम ऑफ सुपरएनुएशन रिटायरमेंट तो आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस का जो वैल्यू और यूनिट्स है वो पूल कॉर्पस को ट्रांसफर होगा, मगर इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू और यूनिट्स सभी समय बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू और यूनिट्स के साथ समान होना चाहिए। समान नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा आगे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मगर इसमें इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू और यूनिट्स वो ट्रांसफर हो जाएगा पूल कॉर्पस को, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू और यूनिट्स बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू और यूनिट्स के साथ समान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनकेस, देखिए कंडीशन दे दिया, इनकेस द वैल्यू और यूनिट्स ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस इज लेस देन द वैल्यू और यूनिट्स ऑफ द बेंचमार्क कॉर्पस। देखिए यदि इसका वैल्यू और यूनिट्स इंडिविजुअल कॉर्पस का लेस देन वैल्यू और यूनिट्स ऑफ बेंचमार्क कॉर्पस, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपको एडिशनल कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, एडिशनल कंट्रीब्यूशन देके उसको मेकअप करना पड़ेगा जो दोनों समान हो जाए। तो इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू और यूनिट्स है, इसमें किसका कंट्रीब्यूशन आता है, एम्प्लॉय का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, और बेंचमार्क कॉर्पस ये जो है ना, बेंचमार्क कॉर्पस इसको कौन डिटरमाइन करता है, पीएफआरडीए। ठीक है, बेंचमार्क कॉर्पस। तो बेसिकली ये यदि ये किस कंडीशन में होता है, जब आप इन्वेस्टमेंट चॉइस कर लेते हो, जब आपका इन्वेस्टमेंट चॉइस है, अदरवाइज आप डिफॉल्ट पैटर्न में इन्वेस्ट करते हो तो ये दोनों समान होगा 100%, मगर आप इन्वेस्टमेंट चॉइस कर दिया तब इसमें दोनों में क्या है, डिफरेंस आता है। अभी क्लियर अंडरस्टूड नॉट, डिफॉल्ट पैटर्न में प्रॉब्लम नहीं है, डिफॉल्ट पैटर्न में दोनों समान होगा, मगर इन्वेस्टमेंट आप चॉइस ले लिया तब इस केस में आईसी और बीसी जो वैल्यू और यूनिट्स ऑफ आईसी मे बी डिफरेंट फ्रॉम वैल्यू और यूनिट्स ऑफ बीसी। ठीक है, तब जब कम होगा, याद रखिए, यदि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि वैल्यू और यूनिट्स ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस लेस देन वैल्यू और यूनिट्स ऑफ बेंचमार्क कॉर्पस, तो जितना कम होगा उसको आप एडिशनल कंट्रीब्यूशन देके
ओके, एडजस्ट करेंगे जो दोनों समान हो जाएगा। आप इसमें एडिशनल कंट्रीब्यूशन आपको देना है, इंडिविजुअल कॉर्पस में आपको एडिशनल कंट्रीब्यूशन देके ये दोनों को हम समान करेंगे। नेक्स्ट में यदि ज्यादा होता है, सपोज इसमें आईसी ग्रेटर देन बीसी, इसमें क्या है, सपोज इसका वैल्यू और यूनिट से 50 लाख, इसका वैल्यू और जो बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू और यूनिट से 45 लाख, तो उसमें कितना ज्यादा है, 5 लाख से इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू में ले लिया तो 5 लाख ज्यादा है, तो ये 5 लाख क्या होगा, जो रिटायरमेंट टाइम में एम्प्लॉय का जो रिटायरमेंट अकाउंट है उसमें जमा हो जाएगा। तो जमा होने से क्या है, दोनों समान हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यदि इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस से ज्यादा होता है, ठीक है, तब क्या होगा, कितना डिफरेंस है, 5 लाख है, क्योंकि बाय 5 लाख इंडिविजुअल कॉर्पस वैल्यू ऑफ आईसी, वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस इज मोर देन बेंचमार्क कॉर्पस। तो ये 5 लाख क्या होगा ना, 5 लाख जाकर एम्प्लॉय का अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो जमा होने से क्या है, 45 लाख दोनों समान हो गया, दोनों समान होना चाहिए। और प्रीवियस केस में क्या था, सपोज देख लीजिए, सपोज आईसी लेस देन बीसी, इसमें क्या है, सपोज इंडिविजुअल कॉर्पस में वैल्यू 45 लाख है, बेंचमार्क कॉर्पस में वैल्यू 50 लाख से, तो आपको एडिशनल कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो इस केस में आपको एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितना, 5 लाख आपको देना पड़ेगा। यदि 5 लाख आप नहीं दोगे तो आपका यदि क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स है तो आपको फुल अश्योर्ड पे आउट मिलता है। मगर यहां पर एडिशनल कंट्रीब्यूशन आप नहीं करोगे तो इस केस में आपको प्रोपोर्शनेट अश्योर्ड पेंशन मिलेगा, फुल नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो गया। कितना कम है, 5 लाख। तो 5 लाख कम है मींस आपको इसको देना है, देकर उसको मेकअप करना है, जो दोनों समान होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? नहीं दोगे तो आपको प्रोपोर्शनेट आ जाएगा, फुल अश्योर्ड पे आउट नहीं मिलेगा। मगर इसमें जो यदि मैं अभी बताया कि यदि आपका इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस से ज्यादा है, सपोज इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू 55 लाख से, और एक एग्जांपल देता हूं, बेंचमार्क कॉर्पस जो पीएफआरडीए डिटरमाइन किया है वो 50 लाख है, तो उसमें कितना ज्यादा हो गया, 5 लाख। तो ये 5 लाख एम्प्लॉय का अकाउंट में जमा हो जाएगा, और जमा होने से क्या है, वो दोनों समान हो गया, 50 लाख हो गया। अभी क्लियर अंडरस्टूड और नॉट? तो इसको याद रखना है। यहां पर देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ सुपरएनुएशन, और ये जो होता है इन्वेस्टमेंट चॉइस है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट चॉइस आप लेते हो तो तब आईसीबीसी में डिफरेंस होता है, नहीं तो आप डिफॉल्ट पैटर्न में जाओगे। यहां पर क्लियर में लिख देता हूं, आप डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में जाएंगे तो सभी समय इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू और यूनिट्स सभी समय बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू और यूनिट्स के साथ समान होगा डिफॉल्ट पैटर्न में। यदि आप इन्वेस्टमेंट चॉइस किया तब उसमें डिफरेंस आएगा। तो देखिए, इंडिविजुअल कॉर्पस वैल्यू जो है 55 लाख से, बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू है 50 लाख से, तो कितना ज्यादा हो गया, 5 लाख ज्यादा हो गया। तो 5 लाख क्या होगा ना, एम्प्लॉय का अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा 5 लाख को। जब 5 लाख ट्रांसफर कर देंगे तब वो क्या होगा ना, वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस वैल्यू ऑफ बेंचमार्क कॉर्पस के साथ समान हो गया, ये 50 लाख हो गया, ये 50 लाख हो गया। तो इंडिविजुअल चॉइस, इन्वेस्टमेंट चॉइस जो हम लेते हैं इसीलिए लेते हैं क्योंकि कभी कभी हमारा इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा, तो ये हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि डिफॉल्ट पैटर्न में सभी समय वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस इक्वल टू वैल्यू ऑफ बेंचमार्क कॉर्पस। हैव यू क्लियरली अंडरस्टूड और नॉट? तो ये थोड़ा ध्यान देना है, और इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इन जो बेंचमार्क कॉर्पस है वो डिटरमाइन कौन करता है, वो पीएफआरडीए करता है। एक बेंचमार्क कॉर्पस वो डिटरमाइन करता है, ठीक है, क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। इन केस द वैल्यूज और यूनिट्स ट्रांसफर्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम द इंडिविजुअल कॉर्पस टू द पूल कॉर्पस इज लेस देन द वैल्यू और यूनिट्स ऑफ द बेंचमार्क कॉर्पस। मैं वही बताया था, जैसे आपका रिटायरमेंट होगा, इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू को पूल कॉर्पस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू को पूल कॉर्पस किसका था, जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट दे रहा था 8.5%, इसको ट्रांसफर कर देगा। मगर इसमें एक मजा बात है, सभी समय यदि आपका इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस से कम होता है तो आपको यहां पर
फुल अस्योर्ड पे आउट नहीं मिलेगा, यहां पर आपको प्रोपोर्शनेट अस्योर्ड पे आउट मिलेगा। तो इसके लिए मैं वही बोला, रिटायरमेंट टाइम में यदि आपका जो सुपर अन्वेषण टाइम में इंडिविजुअल कॉर्पस का जो वैल्यू है वो उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा पूल कॉर्पस में। और यहां पर हम देखेंगे इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू को हम देखेंगे। इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू यदि बेंचमार्क कॉर्पस से कम होता है तो उस केस में आपको प्रोपोर्शनेट, ठीक है, अस्योर्ड पे आउट मिलेगा। तो इस समय क्या होगा, आपको एडिशनल कंट्रीब्यूशन देके ये दोनों वैल्यू को समान कर देना है। यदि आप एडिशनल कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते हो, ठीक है, तो तब क्या होगा, आपको जो अस्योर्ड पे आउट मिलेगा वो फुल नहीं मिलेगा, फुल से कम हो जाएगा। तो वही प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट मींस फुल अस्योर्ड पे आउट से कम हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक ये तो फंड बेस सिस्टम है, क्योंकि फंड बेस में आप देखिए इंडिविजुअल कॉर्पस में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% है और जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 10% है कि नहीं, और बाकी जो पूल कॉर्पस है इसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 8.5% है। तो ये एक फंड बेस सिस्टम है। यदि ये फंड बेस सिस्टम में हम हमारा जो टाइमली कंट्रीब्यूशन होता है, ओके, कंट्रीब्यूशन क्रेडिटेड टाइमली एंड एक्युमुलेटेड टाइमली, तब प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टाइमली क्रेडिटेड एंड टाइमली एक्युमुलेटेड तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक फंड बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। टू टाइप ऑफ फंड्स हम देख चुके हैं ऑलरेडी, वी लर्नड टू टाइप ऑफ फंड्स, इंडिविजुअल कॉर्पस फंड एंड पूल कॉर्पस फंड। चलो नेक्स्ट वन, यदि आपका जो रिटायरमेंट टाइम में आपका एट द टाइम ऑफ सुपर एनुएशन यदि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है और वो भी चलेगा आफ्टर पोस्ट रिटायरमेंट, तो आपको कितना अस्योर्ड पे आउट मिलेगा वो अभी तक सर्कुलर नहीं आएगा, तो आगे में वो रिलीज गवर्नमेंट करेगा, मगर अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है। यदि सुपर एनुएशन टाइम में आपका डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है और वो भी पोस्ट रिटायरमेंट में चलेगा, तो आपको जो अस्योर्ड पे आउट कितना मिलेगा वो अभी गवर्नमेंट उसको रिलीज नहीं किया है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे, आगे में उसको गवर्नमेंट क्लैरिफाई करेगा, ठीक है। और बाकी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सकता है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट कि यूपीएस एक्चुअली स्कीम साल बी ऑपरेट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, ठीक है। और जो भी इसमें रूल्स रेगुलेशंस जो भी इशू है उसको कौन सॉल्व कर रहा है ना, पीएफआरडीए सॉल्व कर रहा है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखेंगे, मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा इसके बाद, ठीक है। अभी कुछ कंप्यूटेशंस को चलेंगे, ठीक है। इसमें देखिए डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हमारा जो इंडिविजुअल कॉर्पस था, इंडिविजुअल कॉर्पस में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% होता है और जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 10% होता है और दोनों इसी में क्रेडिट होता है, तो इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट चॉइस होता है। यदि हम कुछ इन्वेस्टमेंट चॉइस नहीं दिया तो वो डिफॉल्ट पैटर्न में चला आता है, ठीक है। हम इन्वेस्टमेंट कोई भी इन्वेस्टमेंट चॉइस नहीं दिया ये फंड के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली वो डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। तो डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्चुअली कौन डिटरमाइन करता है, टाइम टू टाइम डिटरमाइन बाय द पीएफआरडी। तो अभी जो भी कंप्यूटेशंस देखेंगे डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में देखेंगे, और इसमें सभी समय याद रखिए डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में आपका इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू के साथ सभी समय समान होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू और बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू की यूनिट्स, ओके, इसका वैल्यू और यूनिट्स और बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू और यूनिट्स दोनों समान रहेगा, ठीक है। और बेंचमार्क कॉर्पस का जो बेंचमार्क कॉर्पस कौन डिसाइड करेगा, पीएफआरडीए। तो ये दोनों समान रहेगा डिफॉल्ट पैटर्न में, ठीक है। अभी आप देखेंगे, देखिए कंडीशंस, देखिए कंडीशंस यहां पर फुल अस्योर्ड पे आउट मिलेगा। देखिए फर्स्ट कंडीशंस में दे दिया कि 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे बिफोर सुपर एनुएशन ₹80,000 है, इसका सिंबल पी है, हम ले लिया, क्योंकि जस्ट प्रायर टू द सुपर एनुएशन हम कैलकुलेट करेंगे 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे, अभी 80,000 है। क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स और मोर, वो मैक्सिमम हम 300 मंथ्स लेंगे, मगर इसको जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसको मंथ्स को कन्वर्ट कर दो, मंथ्स को कन्वर्ट करने से इसका सिंबल क्यू है, ठीक है। याद रखिए जितना आपका क्वालिफाइंग सर्विस है उसको आप मंथ्स में कन्वर्ट कर दीजिए, मगर याद रखिए 25 ईयर्स एंड मोर, बट मैक्सिमम क्यू का वैल्यू 300 मंथ्स होगा। इसमें याद रखिए मैक्सिमम
जो मॉन्स के हिसाब से देखें, मैक्सिमम क्यू का वैल्यू 300 मॉन्स होगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो हम क्वालिफाइंग सर्विस को मॉन्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, यहां पर एक थर्ड कंडीशन जो है वो दे दिया कि आपका जो कंट्रीब्यूशन क्रेडिट हो रहा है रेगुलरली हो रहा है और कोई भी मिसिंग क्रेडिट नहीं है, कोई भी मिसिंग क्रेडिट नहीं है, ठीक है। और आपका जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है डिफॉल्ट पैटर्न है, क्योंकि आपका जो इंडिविजुअल पर्पस का जो फंड है, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट चॉइस नहीं दिया तो वो डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में चला गया। तो उसको डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन करता है पीएफआरडीए टाइम टू टाइम, और इसमें आप कोई पार्शियल विथड्रॉल नहीं करेंगे। द एम्प्लॉय डिड नॉट मेक एनी पार्शियल विथड्रॉल। तो ये 5 कंडीशंस दे दिया। एक 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे दे दिया, आपका क्वालिफाइंग सर्विस दे दिया, उसको मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया, और उसमें क्लियर किया कि आपका जो क्वालिफाइंग सर्विस वो 300 मंथ से ज्यादा नहीं होगा। जो 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे का सिंबल पी, और जो क्वालिफाइंग सर्विस को हम मंथ्स को कन्वर्ट कर दिए वो क्यू है, क्यू का वैल्यू 300 मंथ से ज्यादा नहीं होगा। आपका रेगुलर कंट्रीब्यूशन है, कोई मिसिंग क्रेडिट नहीं है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डिफॉल्ट पैटर्न है, और आप कुछ विथड्रॉल नहीं किया। तो इसमें देखेंगे आप देखिए फॉर्मूला है, एक एग्जांपल में दे दिया कि ये है इंडिविजुअल पर्पस का वैल्यू यूनिट्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 50 लाख इंडिविजुअल पर्पस का, जिसमें इंडिविजुअल पर्पस में 10% होता है, ठीक है, किसका, एम्प्लॉय का और गवर्नमेंट का। तो टोटल वैल्यू जो है 50 लाख है और यूनिट्स 10,000 है, उसको हम आईसी बोलते हैं, इंडिविजुअल पर्पस का वैल्यू, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया। फिर जो पीएफआरडीए ने बेंचमार्क कॉर्पस डिटरमाइन किया है, तो मैं बार बार बताया था कि डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में सभी समय इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू के साथ समान होगा। इसका वैल्यू और यूनिट समान होगा, ठीक है। तो क्लियर, अभी देखिए दोनों इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू 50 लाख से 10,000 यूनिट्स, बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू 50 लाख है 10,000 यूनिट्स। तो फॉर्मूला ये है, द अस्योर्ड पे आउट कितना मिलेगा ना, P/2, ये क्या था, P है ₹80,000, ये जो 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे, और Q जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसको मंथ्स को कन्वर्ट कर दिया गया, इसका वैल्यू 300 मंथ से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो Q जो है ना वो क्वालिफाइंग सर्विस को आप मंथ्स में कन्वर्ट कर दो। आईसी का वैल्यू दिया 50 लाख, बीसी का वैल्यू दिया 50 लाख, ये दोनों समान होगा क्योंकि डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अभी फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला में P/2, ओके, 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे डिवाइड बाय 2 इनटू Q/300। जो Q है ना, ये जो Q है वो है क्वालिफाइंग सर्विस इन मंथ्स, ठीक है, और इंटू आईसी बाय बीसी, ये फॉर्मूला है, इंटू आईसी बाय बीसी, ठीक है। और क्लियर, फॉर्मूला याद आ गया। आप देखिए यहां पर मैं बार बार बताया जो क्यू का वैल्यू है वो 300 मंथ से ज्यादा नहीं होगा। क्यू जो है, जो क्वालिफाइंग सर्विस को हम कन्वर्ट करेंगे वो 300 मंथ से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि सपोज आप 28 ईयर्स काम किया तो 28 इंटू कितना मंथ्स में, 28 इंटू 12, सपोज इसमें 280 प्लस 56, सो लगभग ये हो गया 336, मगर हम 300 मंथ्स लेंगे, ठीक है। 300 हम कितना लेंगे, 300 मंथ्स लेंगे, ठीक है, क्लियर। तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कीजिए, और सभी समय आपका जो अस्योर्ड पेंशन होगा वो 10,000, इससे कम नहीं होगा। जो मिनिमम आप जानते हो कि आपका मिनिमम अस्योर्ड पे आउट, ठीक है, मिनिमम अस्योर्ड पे आउट 10,000 होगा, और उसके ऊपर प्लस डियरनेस रिलीफ, इससे कम नहीं होगा, 10,000 से कम नहीं होगा, आपका जो पेंशन फिक्स होगा उससे कम नहीं होगा। तो इसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। आपका आ गया, देखिए ये अस्योर्ड पेंशन हो गया 40,000 प्लस इसके ऊपर डियरनेस रिलीफ, ठीक है, ठीक है। मगर इसमें देखिए ये जो कंडीशन सब ठीक है, तो आप क्वालिफाइंग सर्विस तो 25 ईयर्स है, यहां पर तो क्वालिफाइंग सर्विस कितना है, 25 ईयर्स की मोर है, तो इसमें आप डायरेक्टली 50% जो 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे है उसका 50% बाई 40,000 है, उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ, क्योंकि सभी कंडीशन हमारा फुलफिल है,
क्योंकि हमारा मिसिंग क्रेडिट नहीं है, हम कुछ पार्शियल विथड्रॉल नहीं कर रहे हैं, हमारा जो डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और क्वालिफाइंग सर्विस क्या है 25 ईयर्स एंड मोर है, तो इसमें आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला को आप छोड़ दीजिए, आप सीधा जो 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे है उसका 50% ले जाइए, वही पेंशन फिक्स होगा, और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ में और करके डाल दिया। अदरवाइज ये फॉर्मूला है P/2 इंटू Q/300 इंटू IC/BC, ये एक्चुअली फॉर्मूला है P/2 इंटू Q/300 इंटू इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बाय बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू। यदि सभी कंडीशंस ठीक है, आपका टाइमली क्रेडिट हो रहा है, आपका जो कंट्रीब्यूशन टाइमली हो रहा है, कोई मिसिंग क्रेडिट नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न डिफॉल्ट पैटर्न है, और डिफॉल्ट पैटर्न है तो ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू के साथ समान है, ठीक है, और आपका क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स एंड मोर है तो हम क्यू का वैल्यू 300 ही लेंगे। तो उस केस में आप डायरेक्टली जितना जो 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे है, 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे उसका 50% पेंशन फिक्स होगा, और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ, ठीक है। ये एक फर्स्ट ऑप्शन था। सेकेंड ऑप्शन में दे दिया देखिए, और एक सेकेंड इलुस्ट्रेशन में भाई 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे ₹80,000 है, वो पी है, मगर यहां पर क्वालिफाइंग सर्विस कम कर दिया 15 ईयर से। तो 15 ईयर्स है मीन्स वो हम जानते हैं कि आपका क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स एंड मोर होगा तब आपको फुल अश्योर्ड पे आउट मिलेगा, उससे कम हो जाएगा तो आपको प्रोपोर्शनेट अश्योर्ड पे आउट मिलेगा। तो यहां पर 15 ईयर्स हो गया, तो 15 ईयर्स को कन्वर्ट कर दीजिए मंथ्स में, 180 मंथ्स क्यों है, और बाकी आपका क्रेडिट रेगुलरली हो रहा है, कोई मिसिंग क्रेडिट नहीं है, डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और डिड नॉट मेक एनी पार्शियल विथड्रॉल्स, ओनली इसी में इसी को चेंज किया, क्वालिफाइंग सर्विस को 15 ईयर्स कर दिया, 180 मंथ्स। तो इस केस में आपको जो पेंशन मिलेगा, जो अश्योर्ड पे आउट मिलेगा, वो फुल से कम हो जाएगा, फुल नहीं मिलेगा, प्रोपोर्शनेट मिलेगा, ठीक है। तो उसका कैलकुलेशन हम देखेंगे, यहां पर देख लीजिए वैल्यू, डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, डिफॉल्ट पैटर्न में आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू और ये यूनिट्स, बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू यूनिट्स के साथ समान होगा, क्योंकि डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और आपका फॉर्मूला वही है P/2 इंटू Q/300 इंटू IC/BC। यहां पर 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे 80,000, क्यू जो है 180 मंथ्स, क्योंकि आपका जो सर्विस है क्वालिफाइंग सर्विस है 15 ईयर्स को कन्वर्ट कर दिए मंथ्स में, IC 30 लाख, BC 30 लाख, ठीक है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर भाई सेम अदर कंडीशंस, आपका क्यू का वैल्यू 300 से ज्यादा नहीं होगा, और आपको मिनिमम पेंशन आपका फिक्स होगा 10,000, ये कंडीशन सभी समय कंपल्सरी है, ठीक है। अभी आप कैलकुलेट कीजिए, वो 24,000 प्लस डियरनेस रिलीफ मिलेगा। अच्छा, आप यदि सभी कंडीशंस को फॉलो कर रहे हो, जैसे आपको 25% में आपको 50% 25 ईयर्स एंड मोर, 25 ईयर्स की 26 27 जो भी है, 25 ईयर्स एंड मोर मीन्स 50% मिल रहा है, तो पर ईयर हम 25 ईयर्स को एक बेस लेके चलेंगे, 25 ईयर्स में 50% है, 1 ईयर में 2% है, तो यहां पर आपका क्वालिफाइंग सर्विस कितना है 15%, आपका क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स मीन्स कितना हो गया 30%। तो अभी आपका 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे का 30% वही 24,000 होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। डायरेक्टली आप इतना बड़ा फॉर्मूला यूज मत कीजिए और इसको डायरेक्टली डाल दीजिए, क्योंकि सभी कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हैं। तो आप यदि हम जो बेंचमार्क का ईयर है 25 ईयर से एंड मोर, हम 50% ले रहे हैं, जो पेंशन हमारा फिक्स हो रहा है 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे का 50% ले रहे हैं, तो पर ईयर हम 25 ईयर्स को बेस मान के चलेंगे, पर ईयर 2% है। यदि आपका क्वालिफाइंग सर्विस 15 ईयर्स है तो ऑटोमेटिकली 30%, तो 30% ऑफ 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे, और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ, सेम थिंग हुआ, समान हुआ, ठीक है कि नहीं। इसको आपको देख लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे 45,000 है, इसको चेंज किया है, 45,000 है, पी है। आपका यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर्स है, मैं बताया था आपका मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर्स होना चाहिए यदि आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हो। तो मंथ्स के हिसाब से 120 मंथ्स से कम नहीं होगा, ठीक है, उसका वैल्यू क्यों है, बाकी सब ठीक है, ओनली इसी को चेंज कर दिया।
और बाकी आपका क्रेडिट रेगुलर हो रहा है, कोई मिसिंग क्रेडिट नहीं है, आपका डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आप उसमें कोई भी विथड्रॉल नहीं कर रहे हो, ओनली आपको सभी कंडीशंस फुलफिल आप कर रहे हो, ओनली चेंज कर दिया क्वालिफाइंग सर्विस आपका 10 ईयर से। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे, यहां पे दे दिया तो डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आईसीबीसी दोनों समान रहेगा क्योंकि डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, दोनों समान है। यहां पर दे दिया आईसी दे दिया 25 लाख वैल्यू में, यूनिट्स में 10,000 यूनिट्स, और बेंचमार्क पर्पस में भाई 25 लाख वैल्यू में और यूनिट्स 10,000, दोनों तो समान होगा। अच्छा, अभी आपका 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे, और क्यू जो है हम क्वालिफाइंग सर्विस को मंथ्स को कन्वर्ट करेंगे। यहां पर क्वालिफाइंग सर्विस दिया है कितना, 10 ईयर्स दिया है, तो 120 मंथ्स आईसीबीसी, ठीक है। और उसमें हम कैलकुलेशन देखेंगे तो ये तो दोनों कंडीशन कॉमन है क्योंकि आपका क्यू का वैल्यू 300 मंथ से ज्यादा नहीं होगा, और आपका जो मिनिमम पेंशन फिक्स होगा 10,000, मिनिमम जो पेंशन 10,000 और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ, ये मिनिमम है जो अस्योर्ड पे आउट 10,000 प्लस डियरनेस रिलीफ, ये मिनिमम, इससे कम नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। तो उसमें आपका 9,000 हो रहा है, देखिए, ठीक है। और एक मजा बात है, आप डायरेक्टली इतना बड़ा फॉर्मूला डाल के आप डाल रहे हो। आप देखिए मैं बताया था जैसे 25 हम बेस लेते हैं, 25 ईयर्स में 50%, तो 1 ईयर में 2%, तो यहां पर क्वालिफाइंग सर्विस कितना है 10 ईयर्स है, तो हम 20% ले जाएंगे, पर ईयर 2% है, तो क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर्स में कितना 20%, सीधा हम जो इसमें देखिए और मैं कर दिया, जो 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे था उसका 20% भी 9,000 हो रहा है, ठीक है कि नहीं। मगर आपको यहां पर आपका मिनिमम अस्योर्ड पे आउट 10,000, तो यहां पर आपको ये नहीं मिलेगा, आपको 10,000 प्लस इसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिलेगा क्योंकि इससे कम नहीं होगा, ये मिनिमम है, तो वही लिख दिया यहां पर। तो मिनिमम अस्योर्ड पे आउट ऑफ ₹10,000 प्लस एप्लीकेबल डियरनेस रिलीफ, क्योंकि यहां पर और एक रीजन दे दिया कि आपका इंडिविजुअल कॉर्पस का जो वैल्यू है तो वो पूरा चला गया पूल कॉर्पस को ट्रांसफर हो गया और पूरा फंड गया, फुल फंड गया, इसमें तो कुछ फंड पूरा फुल फंड पूल कॉर्पस में ट्रांसफर हुआ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका मिनिमम जो पेंशन फिक्स होगा 10,000 होगा और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिलेगा। यहां पर देखिए फुल वैल्यू ऑफ द बेंचमार्क कॉर्पस हैज बीन डिपॉजिटेड फ्रॉम द इंडिविजुअल कॉर्पस टू पूल कॉर्पस, पूरा जो इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू है ओके वो पूल कॉर्पस को गया और वो बेंचमार्क कॉर्पस के साथ समान हुआ, ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे, ये फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक पार्शियल विथड्रॉल, तो आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस है बेसिकली आपका 10% शेयर है एम्प्लॉय का और गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का 10% है, इसी में ही हम पार्शियल विथड्रॉल कर सकते हैं। यदि आप पार्शियल विथड्रॉल किया है तो वो कैसे अस्योर्ड पे आउट को अफेक्ट करेगा अभी हम देखेंगे इस एग्जांपल में। तो यहां पर पार्शियल विथड्रॉल कंफर्म है क्योंकि अदर कंडीशंस में क्या था ना, डिड नॉट मेक एनी पार्शियल विथड्रॉल, अदर जो 3 क्वेश्चंस हम देखा था कि इसमें पार्शियल विथड्रॉल नहीं था, मगर इसमें पार्शियल विथड्रॉल है। आप सपोज आप क्वेश्चन करोगे कि पार्शियल विथड्रॉल किस फंड से, इंडिविजुअल कॉर्पस से, क्योंकि पूल कॉर्पस वो जो है वो गवर्नमेंट का एडिशनल कंट्रीब्यूशन है 8.5%, उससे आप कभी विथड्रॉल नहीं कर सकते, ओनली इंडिविजुअल कॉर्पस से आप विथड्रॉल कर सकते हो। यदि आप विथड्रॉल किया तो वो अस्योर्ड पे आउट को कैसे अफेक्ट करेगा उसको देखेंगे। तो वही है आपका 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे 45,000 डिनोटेड एज पी, 10 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस उसको मंथ्स में कन्वर्ट कर दीजिए 120 मंथ्स क्यू, और आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो रेगुलरली क्रेडिट हो रहा है, कोई मिसिंग क्रेडिट नहीं है, डिफॉल्ट पैटर्न है, मगर यहां पर द एम्प्लॉय मेक पार्शियल विथड्रॉल, यही है, इसको मैं यही है, यही ऑप्शन पार्शियल विथड्रॉल हो गया, ठीक है। तो पार्शियल विथड्रॉल है मींस इसमें देखिए ऑटोमेटिकली पार्शियल विथड्रॉल है तो इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो जाएगा क्योंकि आप पार्शियल विथड्रॉल किया है इंडिविजुअल कॉर्पस से, आप इंडिविजुअल कॉर्पस से पार्शियल विथड्रॉल किया है, इसके लिए इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू से कम हो गया, इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू 22 लाख हो गया, 8,800 यूनिट्स, और बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू 20, ये तो डिफॉल्ट पैटर्न में होता है, बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू डिफॉल्ट पैटर्न, डिफॉल्ट पैटर्न मींस क्या है, डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मींस यहां पर हम जो 25 लाख से ये डिसाइड किया कि आप विथड्रॉल्स नहीं किया, उसके हिसाब से वो बेंचमार्क कॉर्पस को डिटरमाइन किया पीएफआर दिए, ठीक है कि नहीं। आप कोई विथड्रॉल्स नहीं किया
तो उसका एक बेंचमार्क पर्पस को डिटरमाइन किया पीएफआरडीए ने, वो 25 लाख से। तो आप विथड्रॉल्स कर दिया इंडिविजुअल पर्पस से, तो इसलिए इसका वैल्यू कम हो गया। ठीक है, तो यहां पर अश्योर्ड पे आउट आप देख लीजिए, आपका ये 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे, और क्वालिफाइंग सर्विस को मंथ्स को कन्वर्ट कर दीजिए। यहां पर इंडिविजुअल पर्पस का वैल्यू बेंचमार्क पर्पस से कम हो गया, क्योंकि आप इंडिविजुअल पर्पस से विथड्रॉल किया है। तो आप इसमें देखिए, और ये दो कंडीशंस तो कॉमन है, मगर इसमें अश्योर्ड पे आउट हम फॉर्मूला देखेंगे तो ₹8,800 है, क्योंकि इसमें ये आईसी है, ये बीसी है। आप इंडिविजुअल पर्पस से विथड्रॉल किया, इसके लिए उसका वैल्यू बेंचमार्क पर्पस से कम हो गया। तो बेंचमार्क पर्पस में क्या होता है ना, आप कुछ विथड्रॉल, माने ये पीएफआरडीए जो डिटरमाइन करता है, वो ये अज्यूम करके चलता है कि आप कुछ विथड्रॉल्स नहीं किया, उसके हिसाब से वो बेंचमार्क पर्पस को डिटरमाइन किया। मगर आप विथड्रॉल किया है तो ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल पर्पस का वैल्यू बेंचमार्क पर्पस का वैल्यू से कम हो गया, तो ₹8,800 हो गया। क्या आपको यहां पर मिनिमम पेंशन 10,000 मिलेगा, उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ नहीं, इतना ही मिलेगा 8,800, और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ। याद रखिए, यहां पर 10,000 प्लस डियरनेस रिलीफ को हम नहीं जाएंगे, क्यों है ना, जो ट्रांसफर होता है इंडिविजुअल पर्पस का जो वैल्यू है वो ट्रांसफर होता है पूल पर्पस को, पूरा फंड ट्रांसफर होना चाहिए, इसका जो वैल्यू है पूरा फुल होना चाहिए, फुल ट्रांसफर होना चाहिए। मगर यहां पर फुल ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि आप विथड्रॉल कर चुके हो इससे, तो इसमें फुल ट्रांसफर नहीं हुआ। ओके, नॉट फुल ट्रांसफर, इंडिविजुअल पर्पस से आप फुल ट्रांसफर फंड एक्चुअली ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि आप विथड्रॉल कर दिया है। तो इसके वजह से आपका अश्योर्ड पे आउट कम हो गया, और इसको हम मिनिमम 10,000 नहीं कर सकते, वही 8,800 प्लस डियरनेस रिलीफ, क्योंकि इंडिविजुअल पर्पस का पूरा जो वैल्यू है, फुल वैल्यू है, वो ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि आप इंडिविजुअल पर्पस से विथड्रॉल कर चुके हो, इसलिए पूरा फंड पूल पर्पस को ट्रांसफर नहीं हुआ, इसके वजह से ये 10,000 से कम हो गया और यही रहेगा। ठीक है कि नहीं? इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपका पूरा इंडिविजुअल सपोज 10,000 से कम आ जाता है, आपका पेंशन जो फिक्स होता है 10,000 से कम है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था 9,000 हो गया था, मगर जब जो प्रीवियस क्वेश्चन में 9,000 था उसमें हम क्लियरली देखा था कि पूरा इंडिविजुअल पर्पस का वैल्यू ट्रांसफर हुआ था पूल पर्पस को, है कि नहीं? मगर यहां पर पूरा इंडिविजुअल पर्पस का वैल्यू पूल पर्पस को ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि आप इंडिविजुअल पर्पस से विथड्रॉल कर चुके हो, तो फुल फंड ट्रांसफर नहीं हुआ। क्योंकि हम जो बेंचमार्क पर्पस है इसमें हम मान लेते हैं कि पूरा इसमें कोई विथड्रॉल्स नहीं हुआ, जो बेंचमार्क पर्पस पीएफआरडीए डिटरमाइन करता है वो ये मान के चलता है कि इसमें कोई विथड्रॉल्स नहीं हुआ। आपका समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए यहां पर वो 10,000 प्लस डीआर नहीं होगा, वही 8,800 प्लस डीआर होगा। रीजन इज कि इंडिविजुअल पर्पस से आप विथड्रॉल कर दिया, तो इसीलिए पूरा फंड पूल पर्पस को ट्रांसफर नहीं हुआ, इसके वजह से आपका जो पे आउट हो गया वो वही रहेगा, 10,000 से कम में वही रहेगा, वो मिनिमम 10,000 को हम नहीं लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट चॉइस आ गया। यहां पर अभी वो डिफॉल्ट पैटर्न था, यहां पर इन्वेस्टमेंट चॉइस आ गया। इलस्ट्रेशन इन्वेस्टमेंट चॉइस, हम इन्वेस्टमेंट देखिए इन्वेस्टमेंट चॉइस करेंगे तो ये दो आएगा, इंडिविजुअल पर्पस का वैल्यू मे बी मोर देन बेंचमार्क पर्पस का वैल्यू की, और इंडिविजुअल पर्पस का वैल्यू ओके मे बी लेस देन बेंचमार्क पर्पस वैल्यू, क्योंकि आपका डिफॉल्ट पैटर्न में सभी समय इंडिविजुअल पर्पस का वैल्यू बेंचमार्क पर्पस का वैल्यू के साथ समान होता है, मगर यदि आप खुद चॉइस किया तो ये आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा देखेंगे। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट चॉइस, आप चॉइस ले लिया, इंडिविजुअल पर्पस में ओनली चॉइस मिलता है, तो यहां पर आईसी ग्रेटर देन बीसी, इट मींस इंडिविजुअल पर्पस का वैल्यू बेंचमार्क पर्पस का वैल्यू से ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे 45,000 पी है, क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स मोर है, तो हम तो क्यू का वैल्यू मैक्सिमम 300 मंथ्स लेंगे, रेगुलरली क्रेडिट हो रहा है, नो मिसिंग क्रेडिट। यहां पर ये है, देखिए इन्वेस्टमेंट चॉइस, ये डिफॉल्ट पैटर्न नहीं है, इन्वेस्टमेंट चॉइस ले लिया, यही इंपॉर्टेंट है। और बाकी आप कुछ विथड्रॉल्स नहीं किया, मगर इंपॉर्टेंट है आप इन्वेस्टमेंट चॉइस लिया। ठीक है, तो इस केस में हम देखेंगे आईसीबीसी में डिफरेंस आ जाएगा। यहां पर देखिए आईसी का वैल्यू जो है, इंडिविजुअल पर्पस का वैल्यू 55 लाख से 11,000 यूनिट्स,
बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू 50 लाख से 10,000 यूनिट्स। तो यहां पर हम क्या देखा कि इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ बेंचमार्क कॉर्पस। कितना ज्यादा है ना, 5 लाख ज्यादा है कि नहीं? कितना ज्यादा है? 5 लाख ज्यादा। तो ये 5 लाख एम्प्लॉय का अकाउंट में जमा हो जाएगा। जो आपका रिटायरमेंट टाइम में जो आपका डेजिग्नेटेड अकाउंट है उसमें 5 लाख चला जाएगा। तो 5 लाख जाने से क्या है ना, आपका इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू के साथ समान हो जाएगा, वही 50-50 हो जाएगा। तो ये आपका एम्प्लॉय का अकाउंट में जमा हो जाएगा, ये बहुत अच्छा है। और बाकी आपको फुल एश्योर्ड पे आउट मिलेगा, क्योंकि ये 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे। क्यू तो 300 मंथ्स, क्योंकि 25 ईयर्स मोर मीन्स हम मैक्सिमम 300 मंथ्स लेंगे। आईसी 55 लाख, बीसी 50 लाख। मगर जब कैलकुलेट करेंगे दोनों समान लेंगे, और इसमें वही दो कंडीशन, कॉमन कंडीशन, क्यू का वैल्यू 300 मंथ से ज्यादा नहीं होगा, और आपको मिनिमम जो आपका पेंशन फिक्स होगा 10,000, और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ। तो यहां पर जो अश्योर्ड पे आउट वही है ₹22,500 प्लस डियरनेस रिलीफ, क्योंकि इसमें आप डायरेक्टली आपका क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स मोर है तो 50% हम लेके कैलकुलेट कर देंगे। तो 45,000 का 45,000 जो 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे है उसका 45,000 का 50% क्या है ना, 22,500। मगर इसमें मजा बात है, इसमें दोनों आईसी और बीसी समान कर दिया, मगर एक्चुअली समान नहीं है। तो 5 लाख एक्स्ट्रा है। ओके, आईसी इंडिविजुअल कॉर्पस ग्रेटर देन बेंचमार्क कॉर्पस बाय 5 लाख। तो ये 5 लाख क्या होगा ना, जो रिटायरी है, जो एम्प्लॉय सुपरएनुएशन में रिटायरमेंट हो रहा है, उसका अकाउंट में 5 लाख जमा हो जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट चॉइस में क्या है, ये ऑप्शन में फायदा मिलता है। क्योंकि कभी कभी हम डिफॉल्ट पैटर्न नहीं लेते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि आईसी ग्रेटर देन बीसी होगा और कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट हमारा अकाउंट में जमा हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जैसे हम 5 लाख जैसे एम्प्लॉय का अकाउंट में जमा कर दिए, तब आईसी इक्वल टू बीसी हो गया, दोनों 50 लाख हो गया, है कि नहीं? तो इसमें ये फायदा है, तो इसलिए हम इन्वेस्टमेंट चॉइस लेते हैं। अदरवाइज वही पेंशन फिक्स हो जाएगा 20,500, क्योंकि 50% ऑफ 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे, क्योंकि आपका क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स और मोर है तो 50% मिलेगा। तो 22,500 है प्लस डियरनेस रिलीफ। नेक्स्ट अनदर देखिए, आप इन्वेस्टमेंट चॉइस लिया मगर इसमें आईसी लेस देन बीसी हो गया। जो इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू से कम हो जाएगा, यहीं पर लॉस होता है, क्योंकि डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में दोनों समान होगा सभी समय। तो इन्वेस्टमेंट चॉइस में क्या है, आईसी बीसी में चेंज होता है। यदि आईसी ग्रेटर देन बीसी होता है, बढ़िया है, एक्स्ट्रा अमाउंट हमारा अकाउंट में जमा होगा। यदि इस कंडीशन में आप इंडिविजुअल चॉइस ले लिया मगर इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू लेस देन बेंचमार्क कॉर्पस से हो गया, तो इसमें आपको लॉस होना पड़ता है। तो इसके ऊपर देखेंगे भाई 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे 45,000, आप 25 ईयर्स और मोर क्वालिफाइंग सर्विस, सिंबल क्यू है, रेगुलरली क्रेडिट हो रहा है और नो मिसिंग क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट चॉइस आप लिया, मैं टिक लगा दिया, यहां पर डिफॉल्ट नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट चॉइस किया और आप कोई पार्शियल विथड्रॉल्स नहीं किया। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि आपका आईसी का वैल्यू 45 लाख हो गया, 9,000 यूनिट्स, और आपका जो बेंचमार्क कॉर्पस का वैल्यू 50 लाख हो गया, 10,000 यूनिट्स। तो 5 लाख कम हो गया आईसी। तो यहां पर जो आईसी लेस देन बीसी है, इसमें 5 लाख कम हो गया। ओके, तो आप जानते हो बेंचमार्क कॉर्पस सभी समय ये जो 50 लाख डिटरमाइन होता है वो सभी समय डिफॉल्ट पैटर्न में डिटरमाइन होता है, डिफॉल्ट पैटर्न में, और डिफॉल्ट पैटर्न में आईसीबीसी समान होता है। तो ये जो बेंचमार्क कॉर्पस सभी समय डिफॉल्ट पैटर्न में ही डिटरमाइन होगा। तो डिफॉल्ट पैटर्न में हम जाएंगे तो 50 लाख होगा, मगर आप इन्वेस्टमेंट चॉइस ले लिया, इंडिविजुअल कॉर्पस का इन्वेस्टमेंट चॉइस ले लिया, इसके लिए आप 45 सपोज कम हो गया, कभी कभी ज्यादा भी होता है, ज्यादा होने से आपको फायदा है और यहां पर कम हो गया। तो इस केस में आपका जो अश्योर्ड पे आउट है वो अफेक्ट होगा। आप यहां पर देखिए फॉर्मूला में जाएंगे, ठीक है, ये है 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे, क्यू 300 मंथ्स, आईसी 45 लाख, बीसी 50 लाख। ठीक है, अदर कंडीशन तो ये समान है। तो इसमें आपका देखिए कम हो गया अश्योर्ड पे आउट, क्योंकि यही चेंज हो गया ना, आईसी 45 लाख हो गया और यहां पर बीसी 50 लाख हो गया। तो 20,250 प्लस डीआर, क्योंकि नॉर्मली कितना होता
22,500 होना चाहिए, 50% होना चाहिए, 50% ऑफ 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे। मगर यहां पर आप इन्वेस्टमेंट चॉइस किया, आईसी बीसी से कम हो गया, तो उसके वजह से देखिए आपका जो पेंशन फिक्स हुआ वो 20,500 से कम हो गया, ठीक है नहीं। तो ये होता है, आप चॉइस में कभी कभी आपको फायदा मिलेगा इन्वेस्टमेंट चॉइस में, और कभी कभी लॉस भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, ये एक है इंडिविजुअल चॉइस, इन्वेस्टमेंट चॉइस आप लिया, आईसी लेस देन बीसी है, मगर आप उसको क्या किया ना, रिकूप कर दिया, माने कुछ आप कंट्रीब्यूट कर दिया, कंट्रीब्यूट इफ द एम्प्लॉई पार्शियली रिकूप द इंडिविजुअल कॉर्पस, आप पार्शियली कुछ रिकूप कर दिया, पार्शियली कुछ दे दिया। इसमें देखेंगे इफ द एम्प्लॉई पार्शियली रिकूप द, इसमें क्या था पहले वाला, इसमें आप कुछ जो लॉस हुआ ना, यहां पर आप कुछ नहीं दिए। देखिए इफ द एम्प्लॉय डज नॉट रिकूप, माने आप मेकअप नहीं किया, यहां पर क्या है ना, आईसी लेस देन बीसी बाय 5 लाख, इसको इसको आप दे सकते हो एडिशनल कंट्रीब्यूशन के आकार में, दे के इस दोनों को समान कर सकते हो। सुपरएनुएशन टाइम में आप देखा कि आईसी लेस देन बीसी है, तो आप कितना है ना 5 लाख डेफिसिट आ रहा है, तो आप 5 लाख दे दोगे तो ये दोनों समान हो जाएगा, 5 लाख एडिशनल कंट्रीब्यूशन कर दोगे तो दोनों समान होने से क्या है ना, आपका मेरा जो एग्जांपल में ये फिक्स होगा 22,500 प्लस उसके ऊपर डीआर, मगर यहां पर आप ये 5 एडिशनल कंट्रीब्यूशन नहीं किया, ये ऑप्शन में दिया है। देखिए इफ द एम्प्लॉय डज नॉट रिकूप द इंडिविजुअल, रिकूप मींस मेकअप, रिकूप मींस कॉम्पेंसेट और मेकअप, आप नहीं किया, ठीक है। वही आईसी रह गया 45 लाख और बीसी रह गया 50 लाख। आप ये जो 5 लाख आपका जो डेफिसिट है उसको आप एडिशनल कंट्रीब्यूशन नहीं किया, इसके वजह से आपका जो अश्योर्ड पे आउट है वो फुल नहीं हुआ, वो कम हो गया। मगर यहां पर क्या है, ये ऑप्शन में पार्शियली आप दे दिया, वही आप देखिए 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे 45,000, क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स और मोर 300 मंथ्स, आप क्रेडिट रेगुलरली दे रहे हो और कोई मिसिंग क्रेडिट नहीं है, इन्वेस्टमेंट चॉइस है, ठीक है, और डिड नॉट मेक एनी पार्शियल विथड्रॉल, ठीक है, डिड नॉट मेक एनी पार्शियल विथड्रॉल, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें देख लीजिए इन्वेस्टमेंट चॉइस और आप कोई पार्शियल विथड्रॉल नहीं किया, ठीक है। इसमें देखिए तो अभी देखिए आपका 45 लाख से आईसी, जो आईसी है 45 लाख 9,000 यूनिट्स, और उसमें क्या किया, आपका बेंचमार्क कॉर्पस जो है डिफॉल्ट पैटर्न में इन्वेस्टमेंट होता है वो 50 लाख से, इसमें कम हो गया, तो आप क्या किया ना 2,50,000 इसको रिकूप कर दिया, रिकूप मींस आप कॉम्पेंसेट दे दिया, एडिशनल कंट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि आप एडिशनल कंट्रीब्यूट नहीं करोगे तो आपका जो फुल अश्योर्ड जो पे आउट है ना, अश्योर्ड पे आउट वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या किया ना 2 लाख, कितना डेफिसिट हो रहा है, डेफिसिट 5 लाख है एक्चुअली, डेफिसिट इंडिविजुअल कॉर्पस लेस देन बाय बेंचमार्क कॉर्पस बाय 5 लाख, क्योंकि बेंचमार्क कॉर्पस तो डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में पीएफआरडी उसको डिटरमाइन करता है, तो डेफिसिट 5 लाख, मगर आप 5 लाख एडिशनल कंट्रीब्यूट नहीं किए, आप जो आपका जो कंट्रीब्यूशन रहा वो 2.5 लाख पार्शियल कंट्रीब्यूट कर दिया। तो ये पार्शियल कंट्रीब्यूट कर देने से आप देखिए ये हो गया 47.5, क्योंकि एक्चुअली आपका आईसी था 45 लाख और बीसी था 50 लाख, आप यहां पर क्या किया ना एडिशनल कंट्रीब्यूशन कर दिया, सॉरी इसमें आपका आईसी था 45 लाख, बीसी था आपका 50 लाख, आप पार्शियल कंट्रीब्यूशन दे दिया 2.5 लाख, तो पार्शियल कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख दे दिया, तो आईसी कितना हो गया 40, आईसी हो गया 47.5 लाख हो गया, ठीक है। और बाकी एग्जाम्पल में हम जाएंगे तो कितना हो गया ₹21,375 प्लस उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ, क्योंकि एक्चुअली नॉर्मली यदि आप ये दोनों समान हो जाता, ये दोनों समान हो जाता तो हमको कितना मिलता 22,500 प्लस डियरनेस रिलीफ, ठीक है। तो यहां पर पार्शियली आप उसको कॉम्पेंसेट किया, जो जितना आईसी में आपका डेफिसिट हुआ पार्शियली
एडिशनल कंट्रीब्यूशन करके उसको मेकअप किया, मगर फुल नहीं कर पाया। इसके वजह से आपका जो पेंशन फिक्स हुआ वो एक्चुअली फुल एश्योर्ड पे आउट से कम हो गया, राइट। और एक लास्ट में चलेंगे कि आप सपोज रेगुलर आपका कुछ क्रेडिट मिसिंग हो गया, ठीक है, आपका कुछ क्रेडिट मिसिंग हो गया जो आप जैसे रेगुलरली आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, जो एवरी मंथ क्वालिफाइंग सर्विस में कुछ क्रेडिट आपका मिसिंग हो गया, कुछ कंट्रीब्यूशन मिसिंग हो गया, उस केस में हम कंप्यूटेशन देखेंगे। देखिए आपका 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे भाई 45,000 है, क्वालिफाइंग सर्विस भाई 25 ईयर्स मोर, तो क्यू का जो वैल्यू है तो मैक्सिमम 300 मंथ्स है। यहां पर देखिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन मिसिंग हो गया, रेगुलरली आप क्रेडिट नहीं कर पाए, बाकी डिफॉल्ट चॉइस है और पार्शियल विथड्रॉल्स आप नहीं किया, ओनली इसी में प्रॉब्लम रहा कि आपका कुछ क्रेडिट मिसिंग हो गया, ठीक है, अदरवाइज और सब ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आप देखिए आपका इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू कम हो जाएगा, 45 लाख हो गया, क्योंकि हम यहां पर जो बेंचमार्क कॉर्पस निकालेंगे कि हम सपोज कर मानेंगे जो पीएफआरडीए बेंचमार्क कॉर्पस को डिटरमाइन करेगा वो ये मान लेगा कि वो ये अज्यूम करेगा कि आपका कोई क्रेडिट मिसिंग नहीं हुआ, आपका कोई क्रेडिट मिसिंग नहीं हुआ, तो अज्यूम करके डिफॉल्ट उसका तो बेंचमार्क कॉर्पस तो डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो 50 लाख किया, मगर आपका क्रेडिट मिसिंग है तो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस 45 लाख हो गया, 9,000 यूनिट्स। और आपका जैसे पीएफआरडीए माना कि आपका कोई क्रेडिट मिसिंग नहीं है तो बेंचमार्क कॉर्पस को 50 लाख रखा, ठीक है। तो उसमें आप फॉर्मूला डालकर देखिए, ठीक है, इसमें क्या होगा ना आपका, अब देख लीजिए 20,250 प्लस एप्लीकेबल डियरनेस रिलीफ, क्योंकि आपका यहां पर आईसी हो गया 45 लाख और बेंचमार्क कॉर्पस वो है 50 लाख, तो इसमें आईसी कम हो गया, तो इसके वजह से आपका जो अश्योर्ड पे आउट वो अफेक्ट हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आपका कुछ क्रेडिट मिसिंग हो गया था, आपका कुछ क्रेडिट मिसिंग हो गया। और जो पीएफआरडीए जो बेंचमार्क कॉर्पस निकालता है वो सभी समय ये सोचता है कि कोई विथड्रॉल नहीं हुआ, कोई क्रेडिट मिसिंग नहीं हुआ, और ये जो बेंचमार्क वो निकालेगा डिफॉल्ट पैटर्न में निकालेगा, डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में निकालेगा, ठीक है। तो इसमें याद रखिए सभी समय बेंचमार्क कॉर्पस वो जो डिटरमाइन करेगा वो ये मान लेगा कि अज्यूम करेगा कि कोई विथड्रॉल्स नहीं है, कोई क्रेडिट मिसिंग नहीं है, मगर आप विथड्रॉल कर दिया और आपका कुछ क्रेडिट मिसिंग हो गया तो उस केस में आपका इंडिविजुअल कॉर्पस का वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो जाएगा। तो आइदर आप कुछ कॉम्पेंसेट करके दोनों को समान करो, नहीं तो आपका अश्योर्ड पे आउट अफेक्ट होगा। तो आज इतना ही था, अच्छे से मैं उसको क्लैरिफाई किया कंप्यूटेशंस को, और बाकी उसका जो फीचर्स को मैं अच्छे से क्लैरिफाई किया। यदि एनीथिंग इज रॉन्ग वन सो प्लीज फॉरगिव मी, पार्डन मी, but I have tried my best. I think that if you listen my video up to the end, definitely you can get complete information. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. But do not forget to share my video link to others so that others they can get benefit. Thank you and namaskar to all of you.